हेलो बच्चों। एक बहुत ही लंबे ब्रेक के बाद मैं आज फिर से आपके साथ अपनी वीडियोस अपना कंटेंट शेयर करने जा रही हूँ। कुछ इश्यूज हो जाते हैं फिज़िकल, जिसकी वजह से मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाती। बट अब मैं पूरी कोशिश करूँगी, जब तक आपका टीजीटी पीजीटी जीआईसी ये एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते तब तक मैं आपके साथ कंटिन्यू वीडियोस शेयर करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम फिगर ऑफ स्पीच से नया टॉपिक लिया है, इसके साथ में बाकी टॉपिक्स को हम रिवाइज करेंगे। पहला है एलिटरेशन, द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर साउंड्स यूजुअली कॉन्सोनेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम आउट आउट कंटेन्स द एलिटरेटिव फ्रेज स्वीट सेंटेड स्टफ, जहाँ पर हमारे वर्ड्स रिपीट होते हैं, एस 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 कॉन्सोनेंट वर्ड्स रिपीट होते हैं, वहाँ पर एलिटरेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा एपोसियोपेसिस, द ब्रेकिंग ऑफ स्पीच usually because of rising emotion or excitement. For example, touch me one more times and I swear, किसी ने मुझे एक से ज़्यादा बार टच किया और मैं घबरा गई। जो जिसकी इमोशंस और एक्साइटमेंट जहाँ पर आपके सामने आते हैं निकल कर, वहाँ पर होता है हमारा फिगर ऑफ स्पीच एपोसियोपेसिस। नेक्स्ट है हमारा एपोस्ट्रोफी, a direct address to an absent or dead person or to an object, quality or idea. Walt Whitman's poem "Oh Captain, My Captain," written upon the death of Abraham Lincoln, is an example of apostrophe, जहाँ पर हम किसी को एड्रेस करके कोई बात कहते हैं वहाँ पर होता है एपोस्ट्रोफी। जैसे ओ कैप्टन, यहाँ पर इन्होंने ओ कैप्टन कहा है अब्राहम लिंकन को, ओ कैप्टन माई कैप्टन, तो यहाँ पर हमारा फिगर ऑफ स्पीच है एपोस्ट्रोफी। नेक्स्ट assonance, repetition of similar sounds, so vowel sounds in a sequence of nearby words. For example, Alfred Lord Tennyson creates assonance with the O sound in this line for the lotus eater. All day the wind breathes low with mellower tone. Next, cacophony. Cacophony, the clash of discordant or harsh sounds within a sentence or phrase. Cacophony is a similar feature of tongue twister but can also be used to poetic effects, as in the words of affractatious rock in T.S. Eliot's Sweeney Erect. Although dissonance has different musical meaning, it is sometimes used इन इंटरचेंजेबली बाय कोकोफेनी। एक क्लैश हार्श साउंड आता है कोकोफेनी में, जो हमारे कानों को बहुत ही सुकून नहीं देता है, वहां पर हमारा कोकोफेनी होता है। कियमस, two phrases in which the syntax is the same but the placement of words is reversed, जहां पर words का placement reverse होता है, as in these lines from Samuel Taylor Coleridge, "The pains of sleep, to be beloved is all I need, and whom I love indeed." प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स को जो है रिवर्स किया जाता है, लव जैसे लव लव, इस तरीके से दो जगह इन वर्ड्स को यूज किया गया है, तो यहाँ पर हमारा है कियसमस। नेक्स्ट है हमारा क्लिके, an expression such as turn over a few leaf that has been used too frequently, it has lost its expressive power. Next है हमारा colloquialism, in an informal expression or slang, especially in the context of formal writing में इसका use होता है, as in Philip Larkin's send no money. Philip Larkin के send no money में इसका use हुआ था। All the other lads there were itching to have a bash. Next, conceit, an elaborate
parallel between an elaborate parallel between two seemingly dissimilar objects or ideas. इसमें दो सिमिलर और डिसिमिलर को पैरेलल एलेबोरेट किया जाता है. द मेटाफिजिकल पोएट्स आर स्पेशली नोन फॉर दिस कंसीट एज इन जॉन डनेज फ्ली. जॉन डन का जो फ्ली है इसमें इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिलता है. नेक्स्ट, एपिथेट, an adjective or phrase that describes a prominent feature of a person or things. Richard the Lionheart and Shoeless Joe Jackson are both examples of epithets. Richard the Lionheart and Shoeless Joe Jackson, ये जो दो हैं ये एपिथेट के बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट, euphemism, the use of decorous language to express vulgar or unpleasant ideas, events, or actions. For example, passed away instead of died. passed away का यूज होता है died के लिए, तो यहाँ पर है हमारा euphemism. To express vulgar or unpleasant ideas, events, or an action. जहाँ पर unpleasant action, इवेंट्स को हम बताते हैं. पास्ड अवे इन प्लेस ऑफ डाइड. इथनिक क्लींजिंग इंस्टेड ऑफ जेनोसाइड. जेनोसाइड ये भी हमारा एग्जाम्पल है यूफेज्म का. यूफोनिया, प्लीजिंग अरेंजमेंट ऑफ साउंड्स. जैसे हमारा कोकोफोनी में हार्श साउंड होता है वैसे ही यूफोनी में एक प्लीजिंग साउंड होता है. मैनी कंसीडर सैलर डोर वन ऑफ द मोस्ट यूफोनियस फ्रेजेज इन इंग्लिश. नेक्स्ट है हमारा हाइपरबली, एन एक्सेसिव ओवरस्टेटमेंट और कॉन्शियस exaggeration of facts. I have told you about it a million times already. किसी चीज को बहुत ज़्यादा हाईली एक्सप्रेस करके बताना कि आई हैव टोल्ड यू अबाउट इट, मैंने तुमको इसके बारे में 1,000,000 बार बताया. मतलब कितनी बार एक आदमी कोई बताता है? 1 बार 2 बार, रिमाइंड कराएगा 8-10 बार, लेकिन उसने उसको बहुत ही हाइपरबोल कर दिया कि मिलियन ऑफ टाइम्स. नेक्स्ट, इडियम्स. A common expression that has acquired a meaning that differs from its literal meaning, such as it's raining cats and dogs or a bolt from the blue. Common expression has been acquired. यहाँ पर एक कॉमन एक्सप्रेशन आ रहा है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स एंड अ लॉट और अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. नेक्स्ट, litotes, a form of understatement in which a statement is affirmed by negating its opposite. He is not unfriendly. A form of understatement in which a statement is affirmed by negating its opposite, जिसमें 2 अपोजिट वर्ड्स यूज होते हैं. ही इज नॉट अनफ्रेंडली, मतलब वो अनफ्रेंडली नहीं है, वो फ्रेंडली है. हम उसको कहना पॉजिटिव वे में चाह रहे हैं, लेकिन हमको उसको डबल नेगेटिव में यूज करना था. Meiosis, intentional understatement, as for example in Shakespeare's Romeo and Juliet, when Mercutio is mortally wounded and says it is only a scratch. Meiosis is the opposite of hyperbole and often employs litotes to ironic effect. ये जो meiosis है ये hyperbole का तो अपोजिट होता है, बट ये जो है इसमें आयरनिक इफेक्ट होता है लिटोट्स का. ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, मियोसिस इज अपोजिट टू द ऑफ हाइपरबोली एंड ऑफन एम्प्लॉयज लिटोट्स टू आयरनिक इफेक्ट. नेक्स्ट, मेटाफर, द कंपैरिजन ऑफ वन थिंग टू अनदर दैट डज नॉट यूज द टर्म लाइक और एज. शेक्सपियर is famous for his metaphors, as it in metaphor life is but a walking shadow, a poor player that struts and fret his hour upon the stage.
मेटाफर में हम लाइक और एज का यूज नहीं करते हैं सिमली की तरह, बस हमें इसमें कंपैरिजन उनको करना होता है विदाउट यूजिंग लाइक और एज। जैसे लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, अ पुअर प्लेयर दैट स्टुअर्ट्स एंड फ्रेट्स हिज आवर अपॉन द स्टेज। ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? ये लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, हमारे एमसीक्यूज में पूछ ली जाती हैं कि ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं। शेक्सपियर के मैकबेथ से। फिक्स्ड मेटाफर्स हैं कुछ, हम हैं दो तीन, उसको आपको बताते हैं जिनको हमें एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं अक्सर। ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेटाफर that produces a confusion or contradictory image such as the company's collapse left mountain of debit in its wake. Next, metonymy, the substitution of one term for another that generally is associated with it. For example, suits instead of businessman. Onomatopoeia, the use of words such as poop, his, bowing that sound like the thing they refer to. ओनोमोटोपोइया को हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं जहां पर कि साउंड्स को प्रेफरेंस दी जाती है। नेक्स्ट, ऑक्सीमोरन, एसोसिएट टू contrary term as in the expression same difference or wise fool। इस ऑक्सीमोरन को हम ऐसे करते हैं, द एसोसिएशन, दो दो कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म एक साथ इसमें यूज किए जाते हैं। जैसे जैसे इसमें आपको टू वर्ड्स दिए हुए हैं, सेम डिफरेंस, सेम डिफरेंस तो नहीं हो सकता। वाइज फूल, ये वाइज फूल भी नहीं हो सकता। मैं इसका आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। ही इज रेगुलरली इरेगुलर, मतलब रेगुलर भी दिया है और इरेगुलर भी दिया है। इसमें दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ यूज किया गया है। जैसे कहते हैं जैसे क्लास में कोई बच्चा रेगुलरली इरेगुलर है। नेक्स्ट, हिज ऑनर रूटेड हिज डिसऑनर स्टूड, स्वीट सोरो, पीस फोर्स। ये इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑक्सीमोरन के जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, पैराडॉक्स, a statement that seems absurd or even contradictory on its face but often expresses deeper truth. For example, a line in Oscar Wilde's The Ballad of Reading Gaol, and all men kill the things they love. Paradoxically इसको यूज किया जाता है, द स्टेटमेंट सीम्स एब्सर्ड और इवन कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं एक दूसरे के, बट इट्स फेस ऑफन एक्सप्रेसेस डीपर ट्रुथ, बट इनमें से एक बहुत ही डीप ट्रुथ सामने आ रहा होता है किसी के। जैसे एन एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, ये है आपका पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल। जैसे फ्रीडम इज अ स्लेवरी, फ्रीडम इज स्लेवरी, फ्रीडम भी है और आप स्लेव भी हैं। वॉर इज पीस, वॉर भी हो रहा है और साइलेंस भी है। सेम ऐसे ही द बैलेड ऑफ रीडिंग गोल, एंड ऑल मैन किल द थिंग दे लव, हर आदमी उस चीज को खत्म कर देता है जिसे वो प्यार करता है। नेक्स्ट, पैरालिप्सिस, ऑल्सो नोन एज preterio, the technique of drawing attention to something by claiming not to mention it. For example, from Herman Melville's Moby Dick, we will not speak of all quaking peculiarities here. How he eschewed coffee and hot rolls and applied his undivided attention to beef sticks डन रेयर। कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जो हमारे डेली टंग ट्विस्ट में नहीं होते हैं, तो उनको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ऑल्सो नोन एज प्रेटिटियो, द टेक्निक ऑफ ड्रॉइंग अटेंशन, किसी चीज पर अटेंशन देना बाय क्लेमिंग नॉट टू मेंशन इट, लेकिन उसको उसमें मेंशन नहीं करना। अटेंशन तो हम उस चीज को देते हैं लेकिन हम उसको उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। पैरालिज्म, the use of similar grammatical structure or word order in two sentences or phrase
to suggest a comparison or contrast between them. In Shakespeare's sonnet 129, before I joy proposed behind a dream, parallelism also can refer to parallels between larger elements in a narrative. The use of similar grammatical structure, एक जैसे grammatical structure का use होता है, और word order in two sentence और phrases suggest to comparison, दोनों को suggest किया जाता है एक दूसरे से comparison के लिए, और contrast between them या फिर उन दोनों में contrast के लिए. नेक्स्ट है हमारा पैथेटिक फैलेसी. पैथेटिक फैलेसी, द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फीलिंग और मोटिवेशन टू द नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट, स्पेशली एन ऑब्जेक्ट फाउंड इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल, जॉन कीट्स ओड टू मेलांकली डिस्क्राइब्स वीपिंग क्लाउड. वीपिंग क्लाउड, बादल रो रहे हैं, ये पैथेटिक फैलेसी है. एट्रीब्यूट ह्यूमन फीलिंग को नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करना. जॉन कीट्स के मेलांकली में कहा गया है वीपिंग क्लाउड्स. पेरीफ्रेजेस, एन एलेबोरेट roundabout manner of speech, the use more words than necessary, saying I appear to be entirely without financial resources instead of I am broke, is an example euphemism of unemployed. Periphrases, an elaborate and roundabout manner of speech, the uses of more words than necessary. मोर वर्ड्स, जितने ज़्यादा वर्ड्स की उसमें रिक्वायरमेंट महसूस हो, उतने वर्ड्स उसमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं. सेइंग आई अपीयर टू बी एंटायरली विदाउट फाइनेंशियल रिसोर्सेज इंस्टेड ऑफ आई एम ब्रोक इज एन एग्जाम्पल यूफिमिज्म ऑफ एन एम्प्लॉय. पेरीफ्रेजेस. नेक्स्ट है हमारा personification, the use of human characteristic to describe animal, things और ideas. जहाँ पर animals और things के ideas को describe किया जाता है human characteristics के साथ. कार्ल सैंडबर्ग्स poem Chicago describes the city as a stormy, husky, growling city of the big shoulders. Anxiety is sitting on her face. Anxiety, ये एक एग्जाम्पल है. एनएग्जाइटी इज सिटिंग. एनएग्जाइटी थोड़ी ना बैठ सकती है, वो कोई ह्यूमन बीइंग थोड़ी ना है जो कि किसी के ऊपर बैठ जाएगी, बट हम उसको डिस्क्राइब करते हैं एक ह्यूमन कैरेक्टर की तरह. डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग. लाइफ सोरोज सिट एंड वीप. ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पर्सोनिफिकेशन के एग्जाम्पल्स बता रही हूँ, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, जो किसी न किसी ये टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में पूछे गए हैं. डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स. फर्स्ट, अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग. ये टीजीटी 2004 का क्वेश्चन है. लाइफ सोरोज सिट एंड वीप. लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल. ये पर्सोनिफिकेशन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट, play on words, pun. A play on words that exploits the similarity in sound between two words with distinctly different meaning. For example, the title of Oscar Wilde play, The Importance of Being Earnest, is a pun on words earnest meaning serious or sober, and the name Ernest, which figure into a scheme that some of the play's main character perpetrate. ठीक है. प्ले ऑन वर्ड्स, इसमें हम प्ले वर्ड्स के साथ खेलते हैं. इसका भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ जो पूछा गया है पीजीटी 2002 में. एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री. ठीक है. नेक्स्ट, रेटोरिक क्वेश्चंस. Rhetoric questions. A question that is asked not to elicit a response but to make an impact or call attention to something. For example, the question, is not
she great expresses regard for another person and does not call for discussion. ये rhetorical questions होते हैं जो एक दूसरे के को कुछ अटेंशन करने के लिए rhetoric कमेंट करके किए जाते हैं. Sarcasm, a simple form or verbal irony in which it is obvious from context and tone that the speaker means the opposite of what he or she says. Sarcasm usually, but not always, expresses scorn, commenting that was graceful when someone trips and falls in an example. Next, simile. ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है. एक कंपैरिजन, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है पड़ोस में, उसके लिए सॉरी. सिमली, अ कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स थ्रू द यूज ऑफ लाइक और एज. द टाइटल ऑफ रॉबर्ट बर्न्स पोएम माई लव इज लाइक अ रेड रोज इज अ सिमली. ये एग्जाम्पल है इसका. और कुछ है और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल मैं आपको इसके बताती हूँ. माई लव इज लाइक अ रेड रोज, ये तो सेम बता दिया मैंने. इट ड्रॉप्ड एज अ जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, लाइक पेशेंट इथराइज्ड अपॉन अ टेबल. द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट रिस्ट्रेंट. ये इसका एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में पूछा गया है. द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट रिस्ट्रेंट. Synesthesia, the use of one kind of sensory experience to describe another, such as in the line, heard melodies are sweet in John Keats' Ode on a Grecian Urn. ये synesthesia जो है ये आपको जॉन कीट्स के Ode on a Grecian Urn में मिलता है. सेंसरी एक्सपीरियंस, इसको सेंसरी एक्सपीरियंस इसमें दिखाया गया है. Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. इसको आप बस इमेजिन कर सकते हैं. Synecdoche, a form of metonymy is in which a part of an entity is used to refer to the whole. For example, my wheels for my car. The form of metonymy, part of an entity is used for, छोटे पार्ट को बड़े में हम दिखाने की कोशिश करते हैं. माई व्हील्स फॉर माई कार. व्हील्स को हम ऐसे यूज करते हैं जैसे कि हम पूरी कार की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज मैनी माउथ्स टू फीड. इसका एक एग्जाम्पल है, ही हैज मैनी माउथ्स टू फीड. गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड. ये भी इसका एक एग्जाम्पल है. ट्रोप, अ कैटेगरी or figure of speech that extend the literal meaning of words by inviting a comparison to other words, things or ideas. Metaphor, metonymy, simile are three common tropes. ये three common tropes हैं. कौन कौन से हैं three common tropes आपके? Metaphor, metonymy और simile. Next, zigma. The use of one word is a sentence to modify two other words in a sentence, typically in two different ways. For example, in Charles Dickens' Pickwick Papers, the sentence Mr. Pickwick took his hat and his leave uses the word took to two different things. उन्होंने took को two different things में use किया है. तो यहाँ पर आपका फिगर ऑफ स्पीच होगा जिग्मा. अब इसके बाद हम करेंगे फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड एमसीक्यूज. अभी हमने कुछ इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीचेस को डिस्कस किया. अब हम इसके एमसीक्यूज करेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और लगातार चैनल को देखते रहें. आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट अब मैं आप इस चैनल पर दूंगी और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, कम बातें करते हुए सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर फोकस करेंगे. ओके.